سے یہ معاملہ چل رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تاجر بھائیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، کسی سے بھتہ لیا جا رہا ہے، کسی کے بھتے کے اس کے سلسلے میں 1000 روپے کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ ہم یہ پیغام تمام اداروں کو دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر کو امن کے ساتھ رہنے دیں، ادھر فساد کی فضا نہ پھیلائیں۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ شہر ایک مٹھ ہو کر تمہاری دھجی اڑا دے گا، تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارے تاجر بھائیوں کے ساتھ اگر کسی نے اس طرح کا ظلم کیا تو ہم ان کو بتا دیں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ یہاں سے تم دوڑا کے بھاگیں گے۔ میری آواز کھول کے سن لو، جتنے بھی ادارے میرے شہر کے نمائندوں کے ساتھ یا میرے تاجر بھائیوں کے ساتھ کسی نے بھی دھکا شاہی کرنے کی کوشش کی تو یہ شہر کی عوام باہر نکلے گی اور ان کو بتا دے گی کہ ہم امن والے لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم سے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ صفائی کا ہمارے شہر میں کوئی حال نہیں ہے، جو آپ کے کرنے کام ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے، آپ خطا خوری میں مصروف ہیں، آپ اس بیماری کو ختم کریں اور اپنے کام کی طرف آئیں۔ میونسپل کمیٹی کوٹ رادا کشن کے تمام انتظامیہ سے سوال کرتا ہوں، آیا یہ شہر کوٹ رادا کشن کے مسائل کس نے ہم تاجر اگر ہم اپنی ڈیٹ لسٹ نہیں لڑکاتے سامنے تو آپ ہمیں جرمانے کرتے ہیں۔ ہم آپ کے پاس جاتے ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، برتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے، کوئی بھی کسی قسم کا سرٹیفکیٹ لیٹ دے جاتے ہیں، جبکہ فیس ہوتی ہے 100 روپیہ، آپ ہم سے 1000 روپیہ چارج کرتے ہیں۔ کیوں؟ یہ کرپشن کب ختم ہوگی؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ آیا کہ یہ ساری منتلی توڑو توڑ اوپر تک پہنچتی ہے؟ آپ کی بھی لسٹ سامنے شائع ہونی چاہیے کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ 100 روپے کی فیس ہے، برتھ سرٹیفکیٹ کی 100 روپے کی فیس ہے، آپ کیوں نہیں لگاتے؟ یہ میرا آپ سب سے انتظامیہ سے سوال ہے، آیا کہ سارا تاجر ہی سب کے لیے ہے؟ جس کا منہ اٹھتا ہے سی او کی کمیٹی نکلتی ہے وہ تاجر کو پکڑ لیتی ہے، ادھر سے جرمانہ ادھر سے جرمانہ، ادھر سے سی او صاحب کی کمیٹی نکلتی ہے وہ بھی تاجروں کے لیے۔ آپ کو اس شہر میں پوچھنے والا کوئی نہیں ہے؟ لہذا اب انشاءاللہ تعالی ایسا نہیں ہوگا۔ ہم سارے لوگ تاجر برادری اور سول سوسائٹی سب اکٹھے ہو چکے ہیں، انشاءاللہ تعالی آئندہ جو فیس بنے گی وہی دیں گے۔ اب تمام تاجر تنظیمیں اکٹھی ہیں، ایک مٹھ ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ہم جو گنڈا گردی ہو رہی تھی ہمارے ساتھ، آئے دن بھتہ خوری، پرچی وصولی، اور جنہوں نے نہ دیے پیسے ان کی FIR، اب یہ گنڈا گردی بند کرنی پڑے گی۔ اب تاجروں کے ساتھ جو ظلم کیا جا رہا ہے یہ بند کرنا پڑے گا۔ یہ سی او صاحب جو ہے جس کی گاڑی میں پیٹرول ہمارے خون سے ڈلتا ہے، اب وہ اپنی جیب سے ڈالے گا، ہمارے خون سے نہیں۔ لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں، یہ جناب موجیں اڑا رہے ہیں، جس مرضی ہوٹل پر گئے 200 روپیہ دیا، 1500 کھانا لے لیا۔ یہ کوئی انسانیوں والا بات ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ گنڈا گردی بند کرنی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تاجر بھائیوں اور کوٹ رادا کشن کی عوام، تمام بھائیوں السلام علیکم۔ آج کوٹ رادا کشن کے اندر مختلف صحافی برادری، ہمارے شہری، ہمارے تاجر بھائی بہت سارے سوال کر رہے ہیں کہ آج کیا ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں۔
मैं कुछ सवालों का उनका जवाब देना चाहता हूं, जो तमाम लोगों के अंदर एक सवाल पैदा हुआ है। हमारा मकसद कोई ज़हन में ये ना रखे कि ये एक मामला छोटा सा हुआ है, उसके हवाले से हम इकट्ठे हुए हैं। मैं यहाँ पे खड़े होके हल्फन आपसे ये बात कह रहा हूँ, ये एक मसला कोई इशू नहीं है। आपको, तमाम दुकानदारों को, तमाम शहरियों को इस बात का इल्म है कि 2 साल से जो कुछ ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, हमारे भाइयों से जिसका सामान आगे है उससे 1000 रुपया, जनाब बाकी दुकानों से फी दुकान से उन्होंने 500 रुपया डेली का रखा हुआ है। 1 महीने बाद एक बंदे की वो दोबारा आएगी, उससे दोबारा वसूल किया जाएगा। ये सिलसिला 2 साल से चल रहा था। डेली की पोजीशन पे 10,000 से अबव ये पैसे इकट्ठे करते थे और वो बंदरबांट हुआ करती थी। यहाँ पर हमारे ताजर तमाम परेशान थे। असल में मसला क्या बना है जिसके ऊपर ये सारा महाज खड़ा हुआ? हम 2 तंजीमें थी, हम कहते थे ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो करें। वो दूसरे भाई कहते थे कि वो वाले क्यों नहीं करते। हमारे दरमियान जो इख्तलाफात थे, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मिशन के ऊपर अब इकट्ठे हुए हैं। मैं वो आपको बिल्कुल साफ और वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि हमारा मिशन क्या है। आज तक कोर्ट राधा किशन के ऊपर यहाँ पर जितनी बत्ताखोरी हुई है, यहाँ पर जितनी करप्शन हो रही है, किसी बंदे ने आज तक सवाल नहीं उठाया। यहाँ से पेट्रोल किसके पास जाता है, कौन कौन बंदा पेट्रोल डलवा रहा है, यहाँ पर नक्शे की मद में कौन कौन बंदा पैसे ले रहा है, यहाँ पर एसी ऑफिस में रजिस्ट्रियों की मद में पैसे कौन कौन ले रहा है। इंशाअल्लाह ताला हम अब इसका हिसाब लेंगे। बाकी रही बात, ये हमारा मिशन इंशाअल्लाह ताला आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएगा। हमारे जात की जंग नहीं है, खुदा की कसम खा के कहते हैं। ये पर्चे की सियासत के लिए हम कहते हैं ना कि ये पर्चा हो गया। अल्लाह की कसम, खुदा पाक की कसम, हमारा मिशन कोर्ट राधा किशन में अब ये करप्शन को खत्म करना है। इंशाअल्लाह ताला हम इसके लिए एक है। अच्छा, सियासत नहीं है कि ये पर्चा क्यों हुआ, ये छोटे छोटे इशू हैं पर्चे वाले, ये कोई ऐसे मामलात नहीं थे। ये मियां आजम साहब ने सही फरमाया है। इसके ऊपर की बात है कि काफ़ी दिन से ये मसाइल जो बढ़ते चले आ रहे थे, इनका सतहबाब हो नहीं पा रहा था। तो अल्लाह ने एक मौका दिया है सब दोस्तों को एक पेज पर आने का और इसका सतहबाब करने का। और करियाने के हवाले से मैं ये कहता हूँ, जो ये पर्चियाँ लेते हैं, महाना इन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं हमारी, जो ये करियाने वालों से पर्चियाँ वसूल करते हैं। और यूटिलिटी स्टोर के रेट देखे जाए तो आवाम देख सकती है वो रेट कुछ और हैं, उनको सब्सिडी भी दी जाती है। और फैसलाबाद के रेट देखे जाए वो कुछ और होते हैं। और जो हमें लिस्टें दी जाती हैं वो 100 और 50 रुपए कम देके हमें जालिम शो किया जाता है आवाम की नज़रों में, जो कि ऐसा नहीं है। और ये टाउन कमेटी जो एक भत्ता माफिया का गढ़ बन चुकी है, इनका असल में जो काम है वो तो ये करते नहीं है। ये नहर की सफाई है या रोही नालों की सफाई है, जो कब्रिस्तान की कब्रें पड़ी हुई हैं वो इनको नजर नहीं आती, जो कचरे के ढेर हैं वो इनको नजर नहीं आते। अपनी नाअहली को ये नहीं देखते इनकी नाअहली क्या है और इनका काम बनता क्या है। इनको सिर्फ एक दुकानदारों की या रेडी वाले की रेडी नजर आती है कि वो मजदूर अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी कैसे कमा के लेके जाता है। किसी से फल लिया जाता है, किसी से पैसे वसूल किए जाते हैं। और इंशाल्लाह अब ये तमाम ताजर भाई एक प्लेटफॉर्म पर जो जमा है, मुत्तहिद हैं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। और इसका
अमली सबूत इंशाल्लाह हम आपको देंगे और ये इदारे आपके हैं और आपको इंशाल्लाह ये रिलीफ देंगे, हम आपको रिलीफ लेके देंगे और आपको इंशाल्लाह नजर भी आएगा। अस्सलाम। जो अदारे हमारे काम कर रहे हैं, हमारा मकसद उनके साथ टकराव नहीं है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम अपने अदारों को खुलेआम छुट्टी दे दें। हम अपने अदारों को बिल्कुल उनको पूछने वाला कोई ना हो। अल्लाह के फजलो करम से आज उनके वारिस आज एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं। आज मैं म्यूनिसिपल कमेटी के जिम्मेदारान से पूछता हूं कि जब म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन साहब खत्म हुए, मेंबर खत्म हुए, तो 9 करोड़ रुपए इधर छोड़ के गए थे। मेरा मुतालबा है, मैं एक शहरी होने की हैसियत से आपसे ये मुतालबा करता हूं कि वो 9 करोड़ रुपए के कौन सा माल तैयार किया है कोट राधा किशन के अंदर। मैं इनसे मुतालबा करता हूं कि हमें बताया जाए कि 9 करोड़ के अंदर कौन से उन्होंने पुल तैयार किए हैं। मैं उनसे मुतालबा करता हूं कि कोट राधा किशन के अंदर कौन सी जरूरत का काम किया है। मैं मुतालबा करता हूं कि कौन से कोट राधा किशन के अंदर उन्होंने रक्षे तैयार किए हैं। मैं मुतालबा करता हूं कि कौन सी मशीनरी लेके दी है कि जो 9 करोड़ रुपया कौन सी चीज खा गई है कि वो 9 करोड़ रुपया हजम हो गया है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हमारा इकट्ठे होने का एक ही मकसद है कि आपने जो नुमाइंदे कोट राधा किशन के म्यूनिसिपल कमेटी के अंदर भेजे थे, क्या उन्होंने करप्शन की थी? एसी साहब आपका, सीओ साहब आपका, जिन्होंने इस शहर में रहम किया और हमें बिखरे हुए ताजरों को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर मैं कहता हूं, जो ताजर की बात नहीं करता, जो आम की बात नहीं करता, ना वो ताजरों का नुमाइंदा है, ना वो आमी नुमाइंदा है। हम आपकी आवाज है। अगर मुझ में पावर नहीं है कि मैं आपकी आवाज को इन जालिमों शाबरों तक पहुंचा सकूं, इनका गिरबान अपने हाथ से ना पकड़ सकूं, जो लोग आपके गिरबान तक पहुंचते हैं, तो मुझे कोई हक हासिल नहीं है कि मैं आपकी नुमाइंदगी करूं। खुदा के लिए अपनी ताकत को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। आप इस शहर के मालिक हैं।